All right. So I welcome you all to this particular course of C programming, which in short we call CP. And in some colleges, it is also called computer programming. तो C programming बोलो, computer programming बोलो, एक ही चीज है. That's okay. Now, when I teach CP over here, I assume that you know nothing, and I will start right from scratch. Okay. So if you have already done programming, okay, well and good. Please take all this as a revision. ठीक है. अभी जैसे कि मैंने बोला, we'll start from the very scratch. So let's first of all try and understand. Let's first of all try and understand that what CP contains. ठीक है. So CP basically contains a programming language called C. I repeat, it contains a programming language called C. So now the first question in your mind could be, what is the meaning of the word programming? Okay. So जो लोग डेमो लेक्चर्स के लिए आए थे उनको ये सब पता होगा. ओके. So the first half an hour of this lecture will be similar to that demo lecture. So it's okay. You take all this as a revision. Okay. So anyway, let's move ahead. So what exactly is the meaning of word programming? अब प्रोग्रामिंग का तो मैं तुमको मतलब बताऊंगा, बट उसके पहले आई वांट टू टेल यू कि ऑफ लेट देयर इज वन मोर वर्ड विच हैज बिकम मोर फेमस देन प्रोग्रामिंग, एंड दैट वर्ड इज, बोलो वो अल्टरनेट वर्ड क्या है? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलो प्रोग्रामिंग को आजकल क्या बुलाते हैं. ऑल्टरनेटिवली बोलो. कम ऑन. Coding. कोडिंग. उसको बुलाते हैं कोडिंग. By the way, we will always try to keep the sessions interactive. And I always tell my students it is better to give a wrong answer instead of saying nothing. ठीक है, तो तुम गलत आंसर दो, चलेगा, बट चुप मत रहो, कुछ ना कुछ बोलो. ओके, इट्स ओके. So anyway, now the question is, what is the meaning of programming? What is the meaning of coding? So programming is the activity of writing a program, or I will say coding is the activity of writing a code. Okay. So that brings us to another question, that what is the meaning of the word program? Now you will be writing lots and lots and lots of programs in this particular semester, and that is how you should know कि program का मतलब क्या होता है. तो मैं तुमको ना प्रोग्राम का मीनिंग नहीं पूछूंगा. Okay, but I want to know how many of you know the meaning of the word program. So come on, raise your hands. Trust me, I will not ask you the meaning. Trust me, I'll not ask you the meaning. मुझे सिर्फ जानना है कि तुम में से कितने लोगों को प्रोग्राम का मतलब पता है. कितनों को पता है? रेज योर हैंड्स. उस दिन जो डेमो के लिए आए थे उनको तो पता है. श्रीराम, ओके, लोवेश, ऋतु, थिया, रिया, आयुष. ओके, फाइन. You can keep your hands down. All right, Ishan also. Okay, so out of let's say 20 students, hardly 7-8 students know the meaning of the word program. और ये भी वो जो 7-8 स्टूडेंट है, ये वो है जो उस दिन शायद डेमो लेक्चर के लिए आए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है. तो अब एक काम करो. आई एम अज्यूमिंग यू आर सिटिंग विद अ न्यू नोटबुक. तो तुम्हारे नोटबुक में जो सबसे फर्स्ट पेज है उधर एक हेडिंग द प्रोग्राम. कम ऑन. फर्स्ट या सेकंड पेज पे हेडिंग द प्रोग्राम. कम ऑन, डू दैट. प्रोग्राम. ठीक है. अब इसके नीचे हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे इन 3 पॉइंट्स. ओके, तो लिखो पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर वन, अ प्रोग्राम is a sequence of instructions is a sequence of instructions which reads data, processes this data, and gives the desired output. I repeat, a program is a sequence of instructions which reads data, processes this data, and gives the desired output. Point number two, in other words, it is a sequence of instructions to the computer
to perform to perform a particular task. To perform a particular task. Point number 3, a program is always written is always written in a programming language. In a programming language. All right. So now there are 3 points over here which we'll analyze in great detail. Okay. So I would want one of you to read point number 1 for me. Point number 1 for me. Okay. So Asmi, can you read point number 1 for me a little loudly if your mic is working? Asmi, can you read point number 1 for me? Asmi, is it possible? Can you read point number 1 for me? Okay, so I'll take someone else. Okay, Aniruddha, can you read point number 1 for me loudly? Point number 1. Sir, my point number 1 is left. So can you repeat the point number 1? Pardon, your point number 1 is? Left. So can you repeat the point number Okay, 1? okay. So I'll tell someone else to say. Ethan, can you say point number 1? If you're written, Ethan. Ethan. चलो मैं ही बोल देता हूँ. So I'll say point number 1. Okay. So what is this point number 1? अगर नहीं लिखा तो लिख लो. A program is a sequence of instructions which reads data, processes this data and gives you the desired output. अब इसका क्या मतलब है तो इसको समझते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो. ऑल राइट. नाउ क्या होता है ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एंड सो ऑन. ठीक है. Now, these instructions together, what work they do? They read data, process the data, and give you some output. अब इसका क्या मतलब है तो इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आई डोंट नो हाउ टू ऐड टू नंबर्स. Let's say I don't know how to add two numbers and I am asking you to add two numbers for me. I'm asking you to add two numbers for me. हाँ, तो चलो. Now if I'm asking you to add two numbers for me, मुझे दो नंबर ऐड करना नहीं आता, तो what is the first question which you will ask me? चलो, unmute your mic and tell me. Come on, use your common sense. जितना आंसर करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा. It's okay to give a wrong answer. So my question is, I don't know how to add two numbers. I'm asking you to add two numbers for me. So what is the first question which you will ask me? Don't answer over the chat. Unmute yourself and give me the answer. What is the first question which you will ask me? Bolo. Come on. Tell me. Any answers? अरे अगर मुझे एडिशन नहीं आता है और मैं तुमको बोल रहा हूँ गिव मी द सम ऑफ टू नंबर, तो पहला क्वेश्चन तुम मुझसे क्या पूछोगे? बोलो. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? So I got a chat over here. Tanishka says my voice is breaking. Is my voice breaking? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. just a minute. Just a minute. I'll just get back to you.
So you guys can hear me now, or is my voice still breaking? Can you guys hear me now, or is my voice still breaking? Pratyush, yes. Now. Am I audible now properly? Yes. Okay, just give me a minute more. All right, so let's resume from here. Okay, so if my voice is still breaking now, okay, and if you cannot, answer my questions or whatever, then raise your hands or okay, send me the message through the chat. Okay, so you can send me the message through the chat only when there is a problem, like my voice is breaking and all. If you want to answer the questions, then you unmute yourself and answer the question. So I'm assuming you can hear me properly right now. Is my voice still breaking? No, sir. Okay. All right. So, okay. So once again, let's discuss this. तो पहले प्रोग्राम का पॉइंट नंबर 1 क्या था? इन केस यू कुड नॉट राइट प्रॉपर्ली, प्रोग्राम का पॉइंट नंबर 1 ये था, अ प्रोग्राम is a sequence of instructions to the computer which reads data. Sorry, a program is a sequence of instructions which reads data, processes this data and gives us the desired output. ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि देखो प्रोग्राम में क्या होता है ना, तुम इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। वेन एवर यू राइट अ प्रोग्राम यू राइट इंस्ट्रक्शंस, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। So my question to you is, let's say I don't know how to add two numbers. Okay, let's say I don't know how to add two numbers, ठीक है। Now I am asking you, मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि अरे यार प्लीज मुझे दो नंबर्स का सम बताना। Now if I'm asking you, please give me the sum of two numbers, what is the first question which you will ask me? Come on, tell me. What is the first question which you will ask me? बोलो। हाँ बोलो अमीन, मोहक मोहक बोलो। What are the two numbers? वेरी गुड। देखो इफ यू वांट What? टू, यस, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड इज कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस क्या है कि अगर तुमको कोई पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, तो तुम उसको दो नंबर दोगे। ओके, so in other words, what you will do is you will read two numbers from me. So let's say you are reading 5 and 6 two numbers from me. ठीक है? Now I gave you two numbers. Now after I gave you two numbers, what is the next thing which you will do in your mind? बोलो, बोलो, come on, unmute yourself. बोलो, what? Add them. Yes, the next thing which you will do in your mind, correct, you will add them. So in your mind, you will add 5 and 6. Now your mind knows that the result is 11. Will you keep quiet or will you speak out the result? Bolo. What will you do? क्या करोगे बोलो? Speak out. Yes, you will speak out the result. तुम बोलोगे that the result is 11. That the result is 11. ठीक है? So basically जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम में क्या होता है? There are some statements, there are some instructions which will do the work of input. Input का मतलब डेटा को रीड करना, रीडिंग डेटा। There are some instructions which will do the work of processing. Processing का मतलब उस डेटा पे काम करना। And there are some instructions which will do the work of output. Output का मतलब result को बताना। Okay, so this is the definition of the program. It is a sequence of instructions which reads data, an input, processes this data, and gives you the result, any output. Any doubts still here? Any doubts still here? Okay, and once again, if I'm breaking in between, if there is a network issue from my side, please let me know as soon as possible. Okay, अभी पॉइंट नंबर 2 रीड करते हैं। चलो पॉइंट नंबर 2 रीड करते हैं। ऋतु सिंह, ऋतु, कैन यू रीड पॉइंट नंबर 2?
Rutu, can you read point number 2 for me? Point number 2, Rutu, can you read for? Yes, Can, sir. हाँ, It is the sequence. of It is instruction. the sequence to a computer to perform a particular task. हाँ, देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ इन केस कब मेरा आवाज ब्रेक हो रहा था तो मैं फिर से बोलता हूँ, वैसे ये सब प्रिंटेड नोट्स में भी तुमको मिलेगा। हाँ, सो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि इन अदर वर्ड्स it is a sequence of instructions to the computer to perform a particular task। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो देखो सुनो, हम जब रास्ते पे जाते हैं तो हमको ब्लू एंड व्हाइट कलर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन हमको दिखता है वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ओके, वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। अब मुझे एक बात बोलो, ये जो सीट बेल्ट का इंस्ट्रक्शन होता है वो किसके लिए होता है, टू व्हीलर वालों के लिए या फोर व्हीलर वालों के लिए? सीट बेल्ट का। 4 व्हीलर वालों के लिए। हाँ, और हेलमेट का? 2 व्हीलर। टू व्हीलर वालों के लिए, Two बराबर। wheeler. करेक्ट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एवरी इंस्ट्रक्शन इज मेंट फॉर समबडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब लिखा होता है डू नॉट डाइव इनटू द पूल, ओके, डू नॉट डाइव इनटू द पूल, तो वो इंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है, जो उधर स्विमिंग करने आया उसके लिए होता है, ठीक है, स्विमर के लिए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एवरी इंस्ट्रक्शन इज मेंट फॉर समबडी। तो जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो इधर अंडरलाइन द वर्ड्स टू द कंप्यूटर, everybody underline the words to the computer। हाँ, तो क्या होता है ना, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होते हैं, कंप्यूटर के लिए होते हैं। तो प्रोग्राम में जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, समझो प्रोग्राम में हमने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लिखा, रीड 2 नंबर्स, तो वो 2 नंबर्स कौन रीड करेगा बताओ, वो 2 नंबर्स कौन रीड करेगा, किसको हम बोल रहे हैं रीड 2 नंबर्स, बोलो, किसको बोल रहे हैं बोलो? Computer. हाँ, कंप्यूटर को बोल रहे कि भाई तेरे को 2 नंबर रीड करने का है, तेरे को 2 नंबर ऐड करने का है, फिर तेरे को आउटपुट बताना है ऐसे। तो इसलिए तुमने वर्ड्स अंडरलाइन किया टू द कंप्यूटर। फाइनली पॉइंट नंबर 3 एकदम सिंपल है। ओके, आई वांट समबडी, लोवेश पॉइंट नंबर 3 रीड करो, लोवेश पॉइंट नंबर 3 रीड करो, लोवेश। हाँ सर, इट इज ऑलवेज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती ना, इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, ओके। जबकि सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्राम्स आर ऑलवेज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो ये सेमेस्टर में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, फाइनली इन दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, using which we are going to write lots and lots of programs. In other words, we are going to do programming using C programming language. So basically programming का मतलब क्या है, programming का मतलब होता है making the computer do some work, instructing the computer do some work, okay। So any doubts in the definition of the program, any doubts in the definition of the program? ठीक है, बाय द वे लेक्चर के एंड में ना हम ये भी बात करेंगे कि तुम्हें प्रिंटेड नोट्स कैसे मिलेगा, ओके, सो जस्ट रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच यू मे फेस इन दिस सब्जेक्ट, फटाफट उसके बारे में बात करते हैं सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स। अब ये सब्जेक्ट का पहला प्रॉब्लम ये है कि ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। अब तुम बोलोगे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि ये एक न्यू सब्जेक्ट है फॉर मोस्ट ऑफ यू। As far as I think, most of you have never done programming wholeheartedly in your entire life. हो सकता है स्कूल में तुमको जावा हो या कंप्यूटर साइंस हो 11th 12th में, बट शायद तुमने होल हार्टेडली नहीं किया होगा। सो इन दैट केस इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, एंड एनीथिंग विच इज न्यू इज ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग का एक और सीरियस प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि इन प्रोग्रामिंग एवरी प्रॉब्लम इज अ न्यू प्रॉब्लम। अब न्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या है,
प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर प्रोग्राम के लिए तुमको स्क्रैच से सोचना पड़ेगा। जैसे समझो तुमको एक क्वेश्चन आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n। अब जो लॉजिक प्राइम नंबर्स में यूज होता है वो लॉजिक फैक्टोरियल के लिए यूज नहीं होगा। ओके, तो तुमको हर एक के लिए स्क्रैच से सोचना पड़ेगा। अभी लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये मैंने उस दिन भी शायद पूछा था डेमो लेक्चर के दिन। आज से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, 1 डेढ़ महीना पहले तुमने अपना सीईटी का पेपर दिया था। जब तुमने अपना सीईटी का पेपर दिया था, तुमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आए होंगे, ठीक है? तो जब तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आया था, तुमने सबसे पहले अपने माइंड में क्या सोचा? वो प्रॉब्लम देख के बताओ मुझको। वो प्रॉब्लम देख के सबसे पहले तुमने अपने माइंड में क्या सोचा, बताओ? टेल मी, क्या सोचा? बोलो, बोलो। मैं, हाँ, Method to solve the problem. वेरी गुड, ओके। तो तुमने अपने माइंड में शायद सोचा रहेगा कि अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूं, ठीक है? तो होता क्या है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड होता है। अगर तुमको मेथड आता है तो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में अनफॉर्चुनेटली देर आर नो मेथड्स। हर एक प्रॉब्लम तुमको बिगिनिंग से सोचना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग गिव्स राइज टू क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि हर एक को तुमको अलग से सोचना पड़ेगा। मेथड करके कुछ होता ही नहीं है इसमें। ओके, तो मैं तुमको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब 2-3 लेक्चर के बाद ना हम प्रोग्राम सीखना शुरू करेंगे, ठीक है? जब हम प्रोग्राम सीखना शुरू करेंगे तो पता है क्या होगा? यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम विच आई विल टीच यू। बट एनी आइडिया मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ? बट कैन यू कंप्लीट माई स्टेटमेंट? बट बोलोगे? बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट प्रोग्राम्स ऑन योर ओन। सो अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, चलो इसको सॉल्व करो, तो शायद उसको तुम नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन प्रोग्रामिंग। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है। सो प्रोग्रामर बनने के लिए चाहिए होता है लॉजिक डेवलपमेंट। तुम्हें लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। दैट लॉजिक हैज टू बी डेवलप्ड, एंड दैट डेवलपिंग टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो आज शुरू करोगे ना, तो हो सकता है 5 महीने के बाद नवंबर दिसंबर तक खुद का प्रोग्राम्स लिख पाओगे। ओके, सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर द बिगिनिंग। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सिलेबस। अब इधर से मैं जो भी मैं सिखाऊंगा, मोस्ट ऑफ इट इज न्यू। डेमो लेक्चर में एक आध चीज छोड़ के बाकी हमने कुछ किया नहीं है, सो इट इज न्यू फॉर एवरीबडी। सो नाउ एवरीवन, एवरीवन से मेरा मतलब है जो डेमो में आए थे वो भी, एंड जो नहीं आए थे वो भी, everybody will start with chapter number 1. So you will give a heading. All right. So you will give a heading, chapter number 1, fundamentals of computer programming. Under that, you will give a heading 1.1 computer. Come on, give the heading 1.1 computer. Do that. We're starting with chapter number 1. Okay. So let's start with chapter number 1. तो chapter number 1 का नाम ही बोल रहा है कि in this chapter we are going to study fundamentals of the computer programming. ठीक है? अब क्या है ना, जब तुम कॉलेज जाओगे ना, तो कॉलेज में क्या होगा ना, पहले ही दिन ना टीचर तुमको ऐसा बोलेगा WACP,
और उसके आगे वो कुछ तो बोलेगा। एनी गेस डब्ल्यूएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी गेस क्या होता है, बोलो। डब्ल्यूएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो। Write a Write a computer computer program. program. हाँ, राइट, वेरी गुड, राइट अ सी प्रोग्राम। तो बोलेगा राइट अ सी प्रोग्राम टू डू दिस, टू डू दैट। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि जो बच्चे कॉलेज में गए हैं, आधे बच्चों को तो प्रोग्राम का मीनिंग ही नहीं पता, तो वो बेचारा सी प्रोग्राम क्या लिखेगा? ऑल राइट, उसको सिंटैक्स ही नहीं पता, उसको फाउंडेशंस ही नहीं पता, तो क्या प्रोग्राम लिखेगा? So the first 2-3 lectures, okay, will spend good amount of time in solidifying our foundations, okay। तो हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन को एकदम अच्छा करेंगे, और उसके बाद, ओके, श्रीराम एंड एवरीबडी, प्लीज डोंट गिव मी योर आंसर्स ओवर द चैट, ओके, क्योंकि दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स द फ्लो। तो अगर तुमको कोई भी आंसर देना है ना, अनम्यूट करके बिंदास आंसर दो, ठीक है। अगर कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है और वो सब प्रॉब्लम को इश्यूज है, तो फिर तुम लोग चैट पे भेजो, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज के हाँ, देखो ये भूल गया मैं। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज के द फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स ना हम लोग क्या करेंगे, विल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन सॉलिडिफाइंग आवर फाउंडेशंस, और उसके बाद ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ओके। वैसे 2-3 लेक्चर्स का मतलब 1 वीक मोस्ट प्रोबब्ली, या 1 और 2 वीक्स, ठीक है, क्योंकि एक वीक में अपने 2 लेक्चर्स तो होने ही वाले हैं। अच्छा, अभी once again I am assuming that you know nothing, so if you know things, well and good, well and good, okay। अब आई होप यू हैव गिवन दिस हेडिंग 1.1 कंप्यूटर। अब इसके नीचे चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, कम ऑन, लेट्स राइट अ क्वेश्चन, लिखो। सिट विद अ नोटबुक एंड अ पेन। ये नोटबुक तुमको प्रिजर्व करके रखना है। बाय द वे, ये जो नोटबुक है ना जिसमें तुम लिख रहे हो, ओके, ये तुम कब तक अपने पास रखोगे, बोलो। ये नोटबुक तुम कब तक प्रिजर्व करके रखोगे, बताओ। Fourth year, sir. कब तक? सॉरी अनिरुद्ध, आई कुड नॉट हियर यू, कब तक? Fourth year. हाँ, वेरी गुड, 4th ईयर। एंड अगर तुमने सॉफ्ट, देखो ये नोटबुक हमेशा तुमको अपने पास रखना है टिल द एंड ऑफ योर इंजीनियरिंग। एंड अगर तुमने कंप्यूटर रिलेटेड कोई ब्रांच लिया है, कॉम्प, आईटी, डेटा साइंस, तो यू विल नीड दिस नोटबुक मे बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमेशा ये जो फर्स्ट ईयर में जो भी तुम क्लासेस लगा रहे हो, उसके जो भी नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं, ये रद्दी में फेंक मत देना, ये किसी को दे मत देना, ठीक है। इसको संभाल के अपने पास हमेशा के लिए रखना, ठीक है, ये बात प्लीज याद रखो। एनीवे, सो नाउ लेट्स राइट अ क्वेश्चन, लिखो। व्हाट इज द कंप्यूटर? व्हाट इज द कंप्यूटर? Explain its various units. Explain its various units. Draw its block diagram. Draw its block diagram. I repeat the question. What is the computer? Explain its various units. Draw its block diagram. ठीक है। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द कंप्यूटर, वो तो शायद तुमने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पहली बार किया रहेगा, ओके। तो तुम सोचोगे अरे ये सब इतना छोटा छोटा चीज क्यों करने का, ओके। तो इसका 2 रीजन है। पहला रीजन ये है, जो भी हम अभी इधर करने वाले हैं ना, ये तुम्हारे ओरल एग्जाम्स में लोग पूछते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ओरल्स, वाइवा, वाइवा बोलते हैं उसको। अनदर थिंग इज क्या होता है ना कि अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो विल स्टडी द कंप्यूटर फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका पर्सपेक्टिव है वो तुमको नहीं पता है, तो उस पर्सपेक्टिव से अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा आंसर लिखते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो राइट द आंसर, लिखो। अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। A computer is a digital device which which reads data, processes this data,
and gives some output and gives some output. Full stop. अच्छा सुनो, ठीक है। अभी इस डेफिनेशन को हम एनालाइज करेंगे। ओके, सो लेट मी आस्क रोहन। रोहन, कैन यू रीड द फर्स्ट 5-6 words of this definition? Yeah, Yes, did you? sir. A computer is a digital device Stop. Yeah, which stop. Yeah, stop. Thank you very much, Rohan. So, what the beginning of the definition says it is a digital device. Okay. Now let's spend some time understanding this. जैसे कि मैंने बोला, हम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से सब चीजों को सीखेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एनी आइडिया कौन से दो टाइप्स के होते हैं? ब्रॉड टू कैटेगरीज। एनी आइडिया क्या होता है? अगर पता है तो इट्स ओके इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर। व्हाट टू टाइप्स, कैन यू टेल मी? So digital devices are of two types. Okay, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। आई रिपीट, एक होता है एनालॉग, ये देखो ये वाला, और दूसरा होता है डिजिटल। नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड कुड बी कि ये डायग्राम मैंने सामने क्यों दिखाया, डायग्राम मैंने सामने क्यों दिखाया? तो ध्यान से सुनो। एनालॉग और डिजिटल डिवाइस में फंडामेंटल डिफरेंस पता है क्या होता है? तो फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि an analog device can work. I hope you can see this pen of mine. Huh? देखो इधर एक मेरा पेन घूम रहा है। I hope you can see this. Yes, So, sir. yeah, thank you. So an analog device can work on any signal. It can recognize any signal between plus V and minus V. So I repeat, an analog device can work, can understand any signal between plus V and minus V. Whereas a digital device can work, can understand only two signals, two voltages, that is plus V and minus V. तो डिजिटल, ये देखो बीच में डैश 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 है। तो डिजिटल जो डिवाइस होता है ना, उसको इसके और इसके बीच में कुछ समझ में नहीं आता है, वो उसमें काम नहीं कर सकता है। whereas analog can work on any signal between these two peaks. अब होता क्या है, जो कंप्यूटर है ना, वही डिजिटल डिवाइस है जिसको या तो ये समझ में आता है या तो ये समझ में आता है, बीच का कुछ समझ में नहीं आता है। इट कैन वर्क ओनली ऑन प्लस वी और माइनस वी। नाउ इफ आई एम टीचिंग यू बीडब्ल्यू, अगर मैं बीडब्ल्यू टीचर होता तो मैं प्लस वी माइनस वी के जैसे बोलता, ठीक है। बट आई एम नॉट अ बीडब्ल्यू टीचर, आई एम अ प्रोग्रामिंग टीचर। तो आज के बाद इसको हम प्लस वी माइनस वी नहीं बोलेंगे। एनी आइडिया है प्लस वी को आज के बाद हम क्या बोलेंगे? प्लस वी माइनस वी को क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? गेस करो। इट्स ओके इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर, चलेगा, बोलो क्या। तो आज के बाद ये जो प्लस, हाँ बोलो श्रीराम बोलो। सो आज के बाद जो प्लस वी है ना उस, Positive slope and negative slope. सॉरी, कैन यू रिपीट ऋतु? Positive slope and negative slope. Fairly correct, but that is I would say not programmatically. So आज के बाद प्रोग्रामिंग में ना हम इसको बोलेंगे वन एंड इसको बोलेंगे जीरो। तो देखो, मैंने तुमको बोला ना कि हम सीखेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर फ्रॉम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। ओके, तो आज से पहले तुमने ये तो शायद सुना रहेगा कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन जीरो, या तुमने एक ऐसा लाइन सुना रहेगा कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। याद करो, ऐसा तुमने सुना रहेगा 11th 12th में या कभी कभी। तो बाइनरी क्या होता है? वो होता है वन एंड जीरो। एंड वन एंड जीरो एक्चुअली क्या होता है? प्लस वी माइनस वी। ठीक है। सो फॉर योर ओरल एग्जाम्स, फॉर योर वाइवास, एक काम करो, ये दो डायग्राम कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। ये दो डायग्राम कॉपी करो। ऑल्सो कॉपी दिस वन जीरो, जो भी मैंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग में वो भी कॉपी करो।
अगर हो गया तो गिव मी अ थम्स अप. If you have finished copying, then give me a thumbs up. Okay, Ruti was finished. Arnav is finished. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर तुम्हारा स्पीड ऑफ कॉपिंग थोड़ा कम है ना, ओके, तो तुम क्या कर सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, और स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, तो मेरे लैपटॉप पे जैसे अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो आई विल प्रेस द विंडोज बटन एंड द प्रिंट स्क्रीन टुगेदर. सो आई होप तुम्हारा भी ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम सीख लो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है. बट इफ यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट ना, सिर्फ एक बात याद रखो, लेक्चर खत्म होने के इमीडिएटली बाद उसको नोटबुक में ना कंप्लीट कर लो, वरना फिर तुम्हारा छूट जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, अच्छा अभी वो हम है ना कंप्यूटर का डेफिनेशन कर रहे थे, तो लेट्स रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. हमने देखो इतना रीड किया, अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस. ईशान कारखानिस, कैन यू रीड द रिमेनिंग? अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस, उसके आगे बोल सकते हो? Yes, sir. A हाँ. computer is a digital device which reads data, processes this data, and gives an output. अभी अगर तुम इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो तुम रियलाइज करोगे, दिस डेफिनेशन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज सिमिलर टू हुम. बोलो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज सिमिलर टू हुम. बोलो, सोचो थोड़ा. program. हाँ, तो नाउ इट इज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम. अब ये जो सिमिलैरिटी है ना, ये कोइंसिडेंटल नहीं है. हाँ, ये कोइंसिडेंटल नहीं है. कैन यू टेल मी व्हाई द डेफिनेशंस आर सिमिलर? बोल सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाई द डेफिनेशंस आर सिमिलर? बोल सकते हो? कैन यू टेल मी? So because a computer executes a program. हाँ, very good. Now I want you to read the second point of the definition of the program. हमने देखो प्रोग्राम का भी डेफिनेशन लिखा था ना, उसका सेकंड पॉइंट रीड करो. तो तभी शायद मेरा आवाज ब्रेक हो रहा था, तो मैं सेकंड पॉइंट फिर से बोलता हूँ. इन अदर वर्ड्स, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस to the computer to perform a particular task. In other words, it is a sequence of instructions to the computer to perform a particular task. अब मुझे एक बात बोलो, इधर कौन सा वर्ड मैंने तुमको अंडरलाइन करने बोला था? बोलो, which words were told to be underlined? To the computer. हाँ, टू द कंप्यूटर ना. तो देखो बात एकदम सिंपल है. तुम जब प्रोग्राम लिखते हो, तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो तुम प्रोग्राम में लिखोगे रीड टू नंबर्स. कंप्यूटर क्या करेगा? इट विल रीड टू नंबर्स. तुम प्रोग्राम में लिखोगे ऐड टू नंबर्स, कंप्यूटर क्या करेगा? इट विल ऐड टू नंबर्स. ओके, तो जो जो तुम प्रोग्राम में बोल रहे हो वो कंप्यूटर करेगा. ओके, तो इसीलिए प्रोग्राम का डेफिनेशन, कंप्यूटर का डेफिनेशन सेम है. ठीक है, सो एनी डाउट्स विद दिस? ठीक है. Now let's try and understand the block diagram of the computer. Okay, block diagram. तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला यूनिट होता है ना, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट. अभी गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट. बाय द वे, इनपुट यूनिट इज दैट यूनिट यूजिंग विच इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर, यूजिंग विच द कंप्यूटर रीड्स डेटा. तो गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट. बोलो, कम ऑन, कम ऑन, बोलो. चलो हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कीबोर्ड, चलो एक एग्जांपल तुम दो. कम ऑन. कीबोर्ड एक हुआ, Mouse, माउस CPU. हुआ. हाँ, then you have microphone, you have scanner, and so on. So basically, input unit is that device using which input is given to the computer. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आता है वो होता है मेमोरी यूनिट, which is important from our syllabus point of view. Okay, from our syllabus point of view. Now what I will do, see this yellow line. I hope कोई yellow line दिख रहा है. Above the yellow line, above the yellow line, what we will do is we'll develop the block diagram, we'll develop the block diagram of a computer. ठीक है. And below the yellow line, what we will do is we will develop
ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी यूनिट। तो अभी है ना, मैं तुमको मेमोरी यूनिट का ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा जो उस दिन भी हमने किया था। सो मेमोरी यूनिट ना वो बेसिकली ऐसा दिखता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है जो अब तुम देखोगे, वो ऐसा ऐसा दिखता है। So the memory unit is basically a sequence of locations where each location is called a byte. I repeat, the memory unit is a sequence of locations where each location is called a byte. Byte. Okay. One byte contains 8 bits. One byte contains 8 bits. And a bit is either a 1 or a 0. तो देखो मैं फिर से पूरा बोलता हूं। द मेमोरी यूनिट इज अ सीक्वेंस ऑफ लोकेशंस वेर ईच लोकेशन इज कॉल्ड अ बाइट। तो ये बाइट है, ये बाइट है, ये बाइट है। वन बाइट कंटेन्स, हाँ बोलो क्या कंटेन्स व्हाट? वन बाइट कंटेन्स क्या? 8 bits. अ बिट इज इधर अ क्या? क्या बोलो? 1 और अ 0। ओके। अभी अगर तुम इस डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि मेमोरी यूनिट के अंदर तुमको सिर्फ क्या दिखाई देगा? आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? Yes. ओके, तो मुझे Yes, बोलो sir. मेमोरी यूनिट के अंदर तुमको सिर्फ क्या दिखाई देगा? बोलो, मेमोरी यूनिट के अंदर तुमको सिर्फ क्या One, दिखाई देगा? हाँ बोलो प्रत्युष, जोर से बोलो थोड़ा। क्या? ones and zero. वेरी गुड, वंस एंड जीरोस ही दिखाई देगा। ठीक है। अभी चलो इधर है ना एक सरप्राइजिंग चीज समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जब मैं कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूं ना, योर सेल फोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो अ मिनी कंप्यूटर। क्योंकि हर वो चीज जो कंप्यूटर में होती है वो सेल फोन में भी होती है। इनफैक्ट आज तो जमाना ऐसा है कि सेल फोन महंगा हो गया है, कंप्यूटर सस्ता हो गया है। लैपटॉप तुमको 40,000 तक मिल जाएगा, सेल फोन 50,000 60,000 में मिलता है। ओके, एनीवे, सो लेट्स टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सेल फोन। अब मुझे एक बात बोलो, तुम्हारे सेल फोन में मेमोरी यूनिट है क्या? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अनम्यूट करो, आंसर करो। तुम्हारे सेल फोन में मेमोरी यूनिट है क्या? yes. हाँ है, Yes. Yes. करेक्ट। तो तुम्हारे सेल फोन में वो जो 128 GB है ना, 128 GB या 256 GB, वो बेसिकली मेमोरी यूनिट है, वो बेसिकली हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। ओके। फिर तुम्हारे सेल फोन में वो जो 16 GB है या 32 GB है, ओके, वो है क्या है? बोलो अगर पता है तो, क्या है वो? वो क्या है जो 16 GB 32 GB होता है, वो क्या है? तो हाँ बोलो रिया, बोलो। RAM. हाँ, तो वो है रैम, वो है रैम। ठीक है। एंड एक और चीज होता है रोम, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसका कभी ऐसा मेंशन आता नहीं है, तो उसका बाद में बात करेंगे। एनीवे, तो बेसिकली तुम्हारा जो सेल फोन है ना, उसमें देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेमोरी यूनिट। एक हार्ड डिस्क, एक रैम, एक रोम। ठीक है। अभी तुमने अपने सेल फोन में बहुत सारा फोटो स्टोर किया होगा, बहुत सारा वीडियो स्टोर किया रहेगा, बराबर? जो भी तुमने अपने सेल फोन में स्टोर किया है ना, वो तुमने यहाँ स्टोर किया है, ये हार्ड डिस्क में, जो 128 या 256 GB का है, उधर तुमने स्टोर किया है। ओके। अब देखो, अभी इधर है ना एक चीज है जो तुमको थोड़ा सरप्राइजिंग लगना चाहिए इफ यू आर पेइंग अटेंशन। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि तुमने अपने मेमोरी यूनिट में, सेलफोन के मेमोरी यूनिट में बहुत सारे फोटो स्टोर किए हैं। तुमने अपने सेलफोन के मेमोरी यूनिट में बहुत सारे वीडियो स्टोर किए हैं, बराबर? बट इधर मैं बोल रहा हूं दैट अ मेमोरी यूनिट कैन स्टोर ओनली, ओनली क्या बोलो? ओनली क्या बोलो? बोलो क्या? ओनली क्या? One. हाँ, वंस एंड जीरोस। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, तुमने अपने मेमोरी यूनिट में जितना भी फोटो स्टोर किया है, वीडियो स्टोर किया है, पीडीएफ स्टोर किया है, या जो भी स्टोर किया है ना, एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। इनफैक्ट जो अपना कंप्यूटर भी होता है ना, उसको भी ना खाली वंस एंड जीरोस ही समझ में आता है, उसको और कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके।
भले तुम कंप्यूटर पे कितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क करो, बट एंड में उसको वंस एंड जीरोस ही समझ में आता है। दैट इज द मेन थिंग। अब ऐसा कैसे है वो सब ऑब्वियसली हम बाद में देखेंगे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है ना, उसको बोलते हैं एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये जो एएलयू ना, एएलयू, इसके अंदर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे। एंड सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं पता है? एक दो एग्जांपल दोगे? तुमने किया है शायद 11th 12th में। लॉजिकल ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? तो आई होप तुमको पता रहेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड और, ओके, फिर नॉर, वो सब होता है, ओके। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड ये सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ना, ये होते हैं एएलयू में, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद उसके साथ साथ एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। नाउ आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, नाम से काम समझो। तो तुमको क्या लगता है कंट्रोल यूनिट क्या काम करता रहेगा तुम्हारे हिसाब से? कंट्रोल यूनिट तुम्हारे हिसाब से क्या काम करता होगा, बोल सकते हो? बोलो, नाम देखो और बोलो क्या करता है, गेस करो ना। इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेई मीन्स नहीं दे रहे हो। बोलो कंट्रोल यूनिट क्या करता है तुम्हारे हिसाब से? फीस भी ज्यादा नहीं मांगूंगा, उतना है उतना ही फीस रहेगा तुम्हारा। बोलो क्या करता है कंट्रोल यूनिट? सो जो कंट्रोल यूनिट है ना, वो बेसिकली क्या करता है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंप्यूटर। ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम है एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देना। ये एरो देखो, ये एरो, एंड एएलयू से फीडबैक लेना। सो कंट्रोल यूनिट एएलयू को इंस्ट्रक्शन देता है, एएलयू से फीडबैक लेता है। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू टुगेदर दे आर कॉल्ड सीपीयू। सीपीयू, तो दोनों को मिला के बोलते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब एक एक वर्ड में आंसर करने का ट्राई करो, एक एक वर्ड में आंसर करने का ट्राई करो। इनपुट यूनिट क्या काम करता है? एक दो वर्ड में आंसर करने का ट्राई करो। चलो, इनपुट यूनिट क्या काम करता है, बोलो। कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है, बराबर, वेरी गुड। यानी कमांड देने का। हाँ, डेटा रीड करता है। मेमोरी यूनिट क्या काम करता है? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या काम करता डेटा है? स्टोर है। प्रोसेस द नहीं नहीं नहीं, मेमोरी यूनिट काम करता है डेटा स्टोरेज का, यानी वो डेटा को स्टोर करता है, जैसे तुम्हारा फोटो, वीडियो, वो सब। सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू, सीपीयू, डेटा प्रोसेस। डेटा हाँ, वेरी गुड, डेटा का प्रोसेसिंग करता है। एंड फाइनली, अच्छा सॉरी, पहले इसका बात करते हैं। अभी देखो, सिंपल सी, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करोगे ना, सब सिंपल है। लेट्स से यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर टू ऐड टू नंबर्स। लेट्स से यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। तो मेरे को बोलो, अब वो जो दो नंबर्स है, तुम कहाँ टाइप करोगे? वो दो नंबर्स है, कहाँ टाइप करोगे? वो कीबोर्ड दो, से। बराबर, तुम कीबोर्ड पे टाइप करोगे, हाँ। तो ये कीबोर्ड पे समझो तुम दो नंबर्स टाइप करोगे। अब ये जो दो नंबर्स है, या तो डायरेक्टली वो सीपीयू को मिलेगा, ये देखो ऐसा, हाँ। या फिर वो जो दो नंबर्स है ना, वो पहले मेमोरी यूनिट में जाएगा और वहां से सीपीयू में जाएगा। तो ये एरोस को समझो, एरो को। वो दो नंबर जो तुमने टाइप किया ना, या तो डायरेक्टली सीपीयू को जाएगा, या फिर वो मेमोरी यूनिट में जाएगा, फिर सीपीयू को जाएगा, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जनरेट होगा। तो वो जो रिजल्ट है ना, ये देखो, सीपीयू या तो मेमोरी यूनिट को देगा, मेमोरी यूनिट को, हाँ। या फिर वो रिजल्ट डायरेक्टली मिलेगा आउटपुट यूनिट को। नाउ गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट यूनिट। मॉनिटर। वेरी गुड, चलो एक और एग्जांपल दो। बोलो, हाँ, अमीन बोलो, मोहक बोलो। मोहक, स्पीकर। हाँ, स्पीकर है, प्रिंटर है, एंड सो ऑन, ओके। नाउ ओवर हियर ना, आई विल ड्रॉ टू एरोज। You tell me these two arrows are correct or incorrect. बोलो।
These two arrows are correct or incorrect? बोलो Incorrect. क्या करेक्ट है कि इनकरेक्ट है मोहक? Incorrect है सर. हाँ इनकरेक्ट है, बोलो क्यों इनकरेक्ट है? चलो मैं फिर से वो इनकरेक्ट वाला दिखा दो, इनकरेक्ट क्यों है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो बोलो। आउटपुट को मिलेगा ना. आउटपुट. हाँ आउटपुट यूनिट हमेशा डेटा को लेगा, रिजल्ट को लेगा, वो देगा कभी नहीं। ओके तो एरो ऐसा होना चाहिए। तो आउटपुट यूनिट को जो रिजल्ट मिलेगा या तो वो मेमोरी यूनिट से मिलेगा या सीपीयू से मिलेगा। सो व्हाट यू सी ओवर हियर, ये जो तुमको इधर दिखाई देता है ना, दिस इज द फाइनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज द फाइनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मेमोरी यूनिट। ओके एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू लुक एट दीज टू डायग्राम्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद ये डायग्राम ना तुम खुद से बनाओगे। मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर दूंगा, तुम डायग्राम्स को खुद से बनाओगे। तो देखो आराम से इसको, हैव अ लुक एट इट। ठीक है चलो, अभी डायग्राम खुद से बनाओ, कम ऑन स्टार्ट, मेक द डायग्राम।
ऑलराइट, ये देखो, do the corrections if required. सर हाँ बोलो, एक डाउट था बोलो। सर, ALU का फुल फॉर्म मुझे बता सकते हो? हाँ, ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े। शाली मूव है। यस। ठीक है, सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट कंप्लीटेड। ऑलराइट, नाउ जो अपना मेमोरी यूनिट है ना, उसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में, एकदम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मेमोरी आर देयर? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मेमोरी आर देयर? क्या बोला था मैंने? बोलो। तुम्हारे सेलफोन में हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मेमोरी आर देयर? बोलो। कैन यू हियर मी? गिव मी अ थम्स अप, यू कैन हियर मी क्लियरली। आसिम, अनिरुद्ध, अर्णव, कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके, सो क्या होता है ना, अपने कंप्यूटर में, अपने सेलफोन में देर आर थ्री थ्री फॉर्म्स ऑफ मेमोरी। ओके, पहला होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो हर सेलफोन में, हर कंप्यूटर में ये होता है, इसको डिटेल में अब समझते हैं, ठीक है। अभी रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो नाम से काम समझो। सो दिस मेमोरी is such a memory unit on which only reading is allowed, writing is not allowed. अभी ये पूरे लेक्चर में, या फिर ये आज, अभी नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, जब भी मैं ये वर्ड बोलूँ ना, राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग का मतलब होगा स्टोरिंग, स्टोरिंग ऑन द मेमोरी। देखो, हम मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर करते हैं ना, ठीक है, तो राइटिंग का बेसिकली मतलब है स्टोरिंग। ओके, सो रोम वो मेमोरी है जिसमें डेटा तुम राइट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जो डेटा पहले से लिखा हुआ है उसको तुम रीड कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, जहां अपना सेलफोन मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, जहां अपना सेलफोन मैन्युफैक्चर हुआ है, उस कंपनी में पहली और आखिरी बार रोम पे कुछ लिखा जाता है, स्टोर होता है, और उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ओके, तो तुम्हारे पास एक नॉवेल है, तुम्हारे पास एक नॉवेल है। ओके, उस नॉवल में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही कुछ लिखा हुआ है। अब उस नॉवल में जो लिखा हुआ है उसको तुम क्या बोलो, उसको तुम क्या, क्या बोलने वाला हूँ मैं? बोलो। उसको तुम उसको तुम रीड कर सकते हो, बट ऑब्वियस, सिर्फ रीड चेंज कर नहीं कर सकते हो। सकते। करेक्ट, हाँ, तुम उसको रीड कर सकते हो ना, नॉवल के अंदर तो तुमको लिखते नहीं हो। ओके, तो बस वही रॉम का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन। ओके, अभी इधर क्वेश्चन है। देखो, रॉम पे राइटिंग एंड स्टोरिंग अलाउड नहीं है, तो तुमको क्या लगता है, रॉम is used for storing what kind of data? मैं दो ऑप्शन दूंगा तुमको। ROM is used for storing what kind of data? The data which is temporary in nature or the data which is permanent in nature? बोलो। The data which is परमानेंट temporary। इन नेचर। हाँ, क्या बोला, फिर से बोलो। क्या? टेम्पररी टेम्पररी आंसर इज टेम्पर परमानेंट, परमानेंट। ROM stores only that data which is permanent. क्यों? क्योंकि ROM पे जो डेटा है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे कंप्यूटर के लिए कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो तुमको परमानेंटली चाहिए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, और उसका एक एग्जाम्पल है मॉनिटर प्रोग्राम। उसका एक एग्जाम्पल है मॉनिटर प्रोग्राम। अभी मॉनिटर प्रोग्राम क्या है, मॉनिटर प्रोग्राम क्या है? सो हैव यू एवर हर्ड द वर्ड बूटिंग द कंप्यूटर? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, बूटिंग द कंप्यूटर? ये वर्ड सुना है कभी?
हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, बूटिंग द कंप्यूटर? ये वर्ड सुना है कभी? यस या नो? सो बूटिंग का मतलब बेसिकली होता है स्टार्टिंग। Yes. हाँ, बूटिंग का मतलब होता है बेसिकली स्टार्टिंग। तो क्या होता है ना, अभी ये तुम्हारा सेल फोन है या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तुम्हारे कंप्यूटर पे ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर एक पावर बटन होगा। द मोमेंट यू प्रेस दैट पावर बटन, the moment you press that power button, okay, what you are doing is you are, yeah, Asim, anything? You want to say anything, Asim? The moment you press the power button, okay, what you are doing is you are booting the computer, okay. अब होता क्या है, जैसे ही तुम पावर बटन पे प्रेस करते हो ना, तो रोम में एक प्रोग्राम है, मॉनिटर प्रोग्राम, वो एक्शन में आता है। एंड इट इज द मॉनिटर प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर। तो जैसे ही तुम वो बटन प्रेस करते हो, तुमको तुमको पासवर्ड का एक फील्ड दिखाई देगा। 2 सेकंड के बाद पासवर्ड का फील्ड दिखाई देगा। ओके, फिर पासवर्ड जब तुम एंटर करते हो तो तुमको डेस्कटॉप दिखाई देगा। तो जब तक तुमको डेस्कटॉप दिखाई देता है ना, तब तक मॉनिटर प्रोग्राम एक्शन में रहता है। अब तुम मुझको बोले जो मॉनिटर प्रोग्राम है, तुमको क्या लगता है, इट इज टेम्पररीली रिक्वायर्ड और परमानेंटली रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर? बोलो, बोलो इथन, यस इथन, इथन आंसर द क्वेश्चन। You need it temporarily or permanently? Or anyone else? Answer the question. Do you need the monitor program temporarily or Permanently. permanently? क्योंकि वो नहीं हुआ तो क्या होगा? रिया, अगर मॉनिटर प्रोग्राम नहीं है तो क्या होगा, बोलो। और एनीवन? हाँ, Sir, क्या like होगा? every time जब हम computer start करेंगे, so we need it. हाँ, और तो समझो अगर वो नहीं है, तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है तो क्या होगा? तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। तो प्रोग्राम अगर है ही नहीं तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इट इज अ परमानेंट प्रोग्राम, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड इन रॉम। ठीक है। अब बात करते हैं रैम की। तो जो रैम है ना, उसको कभी कभी बोलते हैं मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम के बारे में डिटेल में और समझेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, बट फॉर टाइम बिंग इतना समझ लो, ऑन रैम राइटिंग इज अलाउड, यानी यू कैन स्टोर योर डेटा ऑन रैम। बट रैम का एक प्रॉब्लम ये है कि इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलेटाइल इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, बोल सकते हो? इन केमिस्ट्री व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलेटाइल, बोलो। चलो, केमिस्ट्री में पूछ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में नहीं पूछ रहा हूँ। केमिस्ट्री किया है ना, बोलो क्या होता है, क्या होता है, बोलो। So in chemistry, the meaning of the word volatile is something which evaporates easily. हाँ, तो जब हम बोलते हैं रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा तुमने रैम पे स्टोर किया है, ओके, दैट डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन रैम टिल द पावर इज ऑन। वंस यू स्विच ऑफ द पावर, दैट डेटा गेट्स डिलीटेड। तो बहुत बार हम बोलते हैं ना, मेरा डेटा उड़ गया, ऐसा उड़ गया। ओके, तो जो उड़ गया होता है वो है रैम, वॉलेटाइल ऐसे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। फाइनली लेट्स कम टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अभी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सो ऑन। अभी तुमने अपने सेल फोन में जो भी स्टोर किया है ना, तुमने अपने सेल फोन में जो भी स्टोर किया है ना, वो तुमने स्टोर किया हार्ड डिस्क में। आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुमने जो भी स्टोर किया है सेल फोन में, हार्ड डिस्क में, वो उधर टेम्पररली रहता है या परमानेंटली रहता है? यानी मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब सेल फोन ऑफ कर देते हो उसके बाद वो रहता है कि नहीं रहता है? तो टेम्पररी है या परमानेंट है, बोलो। रहता है सर। रहता है ना, रहता है सर। करेक्ट। परमानेंट। तो इसका मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ओके, बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। तो इसका मतलब इट इज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, बोलो। नॉन वोलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, वो वॉलेटाइल नहीं नॉन है। वोलेटाइल। करेक्ट, वेर एज रैम वॉलेटाइल है। ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ठीक है, ये इतना कॉपी करो, कॉपी करो एज इट इज, कॉपी करो
एज इट इज कॉपी करो। अगर कॉपी हो गया तो गिव मी अ थम्स अप। अगर हो गया तो गिव मी अ थम्स अप। ओके। ऋतु एंड अर्णव का स्पीड फास्ट लगता है, हमेशा पहले होता है तुम्हारा। वेरी गुड। ओके। He also finished. ऑलराइट, अस्मी, चिन्मय। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ तो। ऑलराइट, नाउ राइट अ क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ो एंड एक क्वेश्चन लिखो, और इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। एक लाइन छोड़ो एंड एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, कंपेयर, कंपेयर मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंपेयर मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। मुझे बोलो सेकेंडरी मेमोरी का एक दो एग्जांपल दो। सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, बोलो किसको बोलते हैं। चलो बोलो, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, एक दो एग्जांपल दो। हाँ बोलो। हार्ड हाँ, हार्ड हार्ड, डिस्क, पेन हार्ड ड्राइव। डिस्क, करेक्ट। हाँ, एंड मेन मेमोरी का मतलब रैम है। तो बेसिकली इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, वो ऑलरेडी तुमको पता है। बोलो क्या है, क्या है बोलो। volatile, वॉलेटाइल non-volatile. एंड नॉन वॉलेटाइल। बराबर, volatile and non-volatile. Now, second difference. So, second difference is RAM has low access time and hard disk has high access time. अब इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनो, ये आगे भी काम आने वाला है। सो बी अटेंटिव, हाँ ठीक है। तो आई होप तुमको याद होगा, तुमने एक ब्लॉक डायग्राम अभी बनाया था खुद से। तो उस ब्लॉक डायग्राम में ना एक मेमोरी यूनिट था, हाँ, एक मेमोरी यूनिट था, ठीक है। एंड उसके नीचे सीपीयू था। अब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू था, बट मैं सीपीयू को ऐसे दिखा रहा हूं। अभी मेमोरी यूनिट ना सीपीयू को डेटा देता है। आई रिपीट, मेमोरी यूनिट सीपीयू को डेटा देता है। ओके, somebody, all right, I guess the voice was breaking again, so I repeat again. तो जो मेमोरी यूनिट है ना, वो सीपीयू को डेटा देता है, या फिर सीपीयू से रिजल्ट लेता है, सीपीयू से रिजल्ट लेता है। ओके, अच्छा। अभी जो मेमोरी यूनिट है ना, ये क्या क्या हो सकता है बोलो। कौन सा तीन टाइप्स का मेमोरी यूनिट हमने सीखा था, बोलो। विच थ्री टाइप्स, बोलो। विच थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट डिड वी स्टडी, बोलो। ROM, RAM. secondary memory. बराबर, ओके। सो वी हैड स्टडीड रैम, वी हैड स्टडीड रैम,
ओके, वी हैड स्टडीड सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क एंड रोम, ठीक है। अब रोम की बात नहीं करते क्योंकि रोम को तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रैम एंड हार्ड डिस्क, ओके। अब ध्यान से सुनना, लेट्स से दिस मेमोरी यूनिट इज रैम and let's say you are transferring data from RAM to CPU, okay? Now, if you're transferring some amount of data from RAM to CPU, let's say you need 5 milliseconds for that. Let's say you need 5 milliseconds for that. Now, let's say you are transferring the same data, I repeat, same data from hard disk to CPU, हाँ? तो तुम सेम डेटा ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम हार्ड डिस्क टू सीपीयू. In that case, you may need, let's say, 8 milliseconds. 8 milliseconds. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? The time taken to transfer data from hard disk to CPU is more than the time taken to transfer the same data from RAM to CPU. या हम उल्टा बोल सकते हैं, if you transfer some data from RAM to CPU, it takes lower time. Hard disk to CPU, higher time. So who is faster than RAM या hard disk? Who is faster, RAM or hard disk? बोलो. Who is faster, RAM or hard disk? बोलो. अरे टाइम जो कम ले, क्या टाइम एंड स्पीड का मालूम? हाँ, RAM is faster, hard disk is slower. तो ये उनके बीच में सेकेंड डिफरेंस है. ये थोड़ा याद रखना है, बाद में भी काम आएगा. जो थर्ड डिफरेंस है वो कमर्शियल डिफरेंस है. वेरी सिंपल, दैट RAM is more costly, hard disk is less costly. Okay, तो ये कमर्शियल डिफरेंस है और कुछ नहीं. Now I want you to copy these points and चाहिए तो ये डायग्राम भी कॉपी कर लो. And over here we'll take a break of 15 minutes. So we'll always take a break so that you can have your lunch in between or you can eat something in between. But जो 15 minutes हो strictly 15 minutes होगा. So it's 1:22. We'll start sharp 1:37. Okay. So put a 15 minutes timer from now. I'll also put a 15 minutes timer from now. Okay. And we'll start sharp after 15 minutes. Okay. So let's take a break. I will stop the recording here. So please remind me to restart the recording. Okay. So let's take a break. All right. So let's resume from here. Okay. Now I want everybody to give the next heading 1.2 programming languages. Come on. Give the heading 1.2 programming languages. Give the heading 1.2 programming languages. ठीक है. अभी थिंग्स विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना. ओके, बी अटेंटिव. अब क्या है ना, कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड वे बैक इन 1950s 1960s, और तभी से लेके अभी तक देयर हैव बीन 3 जनरेशंस, देयर हैव बीन 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो अब जो मैं बोलूंगा ना वो 3 कैटेगरी बोलूंगा, 3 जनरेशंस बोलूंगा, ठीक है. तो पहले कैटेगरी का नाम है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. दूसरे कैटेगरी का नाम है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरे कैटेगरी का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज. सो 1950s में 1960s में जो लैंग्वेजेस यूज होते थे उनको कलेक्टिवली मशीन लैंग्वेज बोला जाता था. 1970s में जो यूज होते थे उनको कलेक्टिवली असेंबली लैंग्वेज बोला जाता था. एंड 1980 से लेके अभी तक जितने भी लैंग्वेजेस हैं दे आर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, पाइथन, जावा, वो सब, ठीक है. अभी ये सब समझने से पहले लेट्स टॉक समथिंग इन जनरल. कुछ बात हम करेंगे इन जनरल, ठीक है. तुम्हें कुछ कुछ सिंपल चीजें समझनी पड़ेगी. जैसे पहली बात तो ये है कि एवरी लैंग्वेज कंटेन्स सम सिंबल्स. अब तुम कोई भी लैंग्वेज की बात करो, ठीक है, तुम कोई भी लैंग्वेज की बात करो, भले वो भले वो इंग्लिश हो, भले वो हिंदी हो, कोई भी हो, एवरी लैंग्वेज विल कंटेन सम सिंबल्स.
So this is a symbol of the English language. This is a symbol of the Hindi language and so on and so on. ठीक है, ये एक बात. दूसरी बात ये कि ये जो मैंने तुमको तीन नाम बताया ना, कौन से तीन नाम? मशीन लैंग्वेज, assembly language, high level language, they are names of categories. They are not individual languages. So जैसे C प्रोग्रामिंग है वो एक लैंग्वेज है, ओके. जावा एक लैंग्वेज है, और ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं ये वाली कैटेगरी में, ओके. तो वैसे असेंबली लैंग्वेज एक कैटेगरी का नाम है, मशीन लैंग्वेज एक कैटेगरी का नाम है, ठीक है. फाइनली एक और छोटी सी बात, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल. मेरे को बोलो प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं? बेसिकली a प्रोग्राम कंटेन्स व्हाट? बोलो. एवरी प्रोग्राम कंटेन्स व्हाट? बोलो. इट्स ओके इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर. बोलो. एवरी प्रोग्राम कंटेन्स व्हाट? बोलो. So every program basically contains some statements or some instructions. ठीक है. तो जब भी तुम प्रोग्राम लिखते हो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. Now with this knowledge, let's start with the first category जो 1950-60s में यूज होता था, machine language. So I want everybody to give this heading A, machine language. Heading दो, A, machine language. Come on. Is heading A, machine language. Come on, do that. ठीक है. अभी machine language is that language which contains only two symbols, ones and zeros. आप थोड़ा सोचोगे तो तुमको बहुत ही अजीब लगेगा कि पूरे लैंग्वेज में दो ही सिंबल्स तुम यूज कर सकते हो, वन एंड जीरो. सो इफ यू आर अलाउड टू यूज ओनली टू सिंबल्स, तो उससे क्या होगा? वॉट एवर स्टेटमेंट्स यू विल राइट, whatever instructions you will write, those statements, those instructions will be a sequence of ones and zeros. For example, this could be an instruction for adding 2 and 9. This could be an instruction for subtracting 9 from 45. ऐसा कुछ भी, okay? तो पूरा प्रोग्राम ना तुमको ऐसा दिखेगा, पूरा प्रोग्राम तुमको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है. अब तुमको अगर सच में समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मेरे को बोलो, writing a program in machine language was a simple task or a tedious task? Cool. तुमको क्या लगता है? writing a program in machine language, हाँ, it was a very tedious task. क्यों? क्योंकि तुमको वंस एंड जीरोस का हर एक कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा ना. तुमको याद रखना पड़ेगा, अच्छा ये 2 and 9 को ऐड करता है, ये 45 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करता है, ऐसे. तो ये उसका पहला डिसएडवांटेज है. But machine language has one more disadvantage. What disadvantage? Machine language is machine specific. Machine language is machine specific. अब इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, be attentive, ठीक है. Let's talk about today. Let's talk about today. Let's say तुम्हारे पास HP का कंप्यूटर है और तुम्हारे फ्रेंड के पास डेल का कंप्यूटर है, ठीक है. नाउ लेट्स से तुमने अपने एचपी के कंप्यूटर पे एक सी प्रोग्राम लिखा है, ओके, टू ऐड टू नंबर्स. ऑन योर एचपी कंप्यूटर यू रोट अ सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स. माय क्वेश्चन टू यू इज, दिस सी प्रोग्राम, will it work on your friend's Dell computer? Yes or no? This C program, will it work on your friend's Dell computer? Yes or no? Come on, yes or no? Bolo. Yes. Yes, the answer is a clear yes. It will definitely work. It will definitely work on your friend's computer. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, that language is not machine specific. So उसका मतलब क्या हुआ? The working of the C program is not specific to any machine. Now let's go in details. 1950s में क्या होता था? समझो एक कंप्यूटर है, ओके, ऑफ XYZ कंपनी. दूसरा कंप्यूटर है लेट्स से ऑफ ABC कंपनी. जैसे ये HP एंड डेल है ना, वैसे XYZ एंड ABC. समझो ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं.
दोनों का मशीनरी जो है वो स्लाइटली अलग अलग है, ठीक है। अब 1950s में क्या होता था, लेट्स से यू राइट अ प्रोग्राम in machine language, I repeat, in machine language for this computer. So this program, फिर एक बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगेन माय क्वेश्चन इज दिस प्रोग्राम which you wrote in 1950 in machine language, will it work on this computer? Yes or no? Will it work on this computer? Yes or no? Yes or no? What do you think? No. The No. answer is no, no, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1950s में, ध्यान से सुनो, 1950s में एवरी मशीन, अच्छा भाई देखो मशीन का इधर मतलब कंप्यूटर है, मशीन का इधर मतलब है कंप्यूटर। 1950s में क्या होता था, एवरी मशीन, एवरी कंप्यूटर हैड इट्स ओन लैंग्वेज, हैड इट्स ओन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो तुम्हारे पास, ध्यान से सुनो हाँ, समझो तुम्हारे पास ये वाले मॉडल के 50 कंप्यूटर्स है, 50 कंप्यूटर्स, हाँ। अब तुमने एक प्रोग्राम लिखा इस कंप्यूटर पे, तो इस मॉडल के जो 50 कंप्यूटर्स हैं उस पे तो ये प्रोग्राम काम करेगा, बट ये प्रोग्राम किसी और मॉडल पे काम नहीं करेगा, तो वो एबीसी वाले कंपनी के कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, ऐसे। तो अब मुझे बताओ, ये जो मशीन स्पेसिफिक है, ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? बोलो, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोग्राम है सिर्फ वो एक ही पर्टिकुलर टाइप के मशीन पे काम करेगा। ओके, समझो, समझो 2-3 साल के बाद तुमने मशीन चेंज कर दिया तो उस पे काम नहीं करेगा। एनीवे, so these are the two disadvantages of the machine language. Okay, but machine language also has one advantage जो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये देख लो एंड रट लो। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। आई रिपीट, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब ये एडवांटेज कैसे हुआ, ये तुमको थोड़ी देर के बाद समझेगा, थोड़ी देर के बाद समझेगा। एनीवे, नाउ इधर तक मैंने जितना भी तुमको बोला ना, जो भी तुमको याद है, ओके, उसको अपने वर्ड्स में एक नोट लिखो अंडर मशीन लैंग्वेज। कम ऑन, यू कैन हैव अ लुक एट इट फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड चाहिए तो देखो, एंड अपने वर्ड्स में नोट लिखो। ये सब प्रिंटेड नोट्स में है, हाँ, विल टॉक अबाउट प्रिंटेड नोट्स इन द एंड। तो ये सब प्रिंटेड नोट्स में है, बट तब तक एक नोट लिखो। ओके, सो यू मे हैव अ लुक हियर। All right, now give the next heading, assembly language. B, small b, assembly language. Assembly language. ठीक है, अभी मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली टू सिंबल्स। बोलो विच टू सिंबल्स, बोलो विच टू, बोलो विच टू, बताओ। Zero. बराबर। नाउ असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज कंटेन्स समथिंग कॉल्ड निमोनिक्स। आई रिपीट, assembly language contains something called mnemonics. Now, what are mnemonics? So, mnemonics are small, simple English-like words. जैसे ये ब्लैक कलर में जो एड दिखता है, ये है निमोनिक। ये एम साइलेंट है, बाय द वे, एम साइलेंट है, निमोनिक। ओके, ये जो एसयूबी सब है वो निमोनिक है। तो ये पूरा का पूरा ना एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को क्या बोलता है कि यू ऐड 5 and 6,
ये बोलता है कि तुम सब्ट्रैक्ट करो 7 फ्रॉम 8 ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में ऐसा स्टेटमेंट्स होता है और उस स्टेटमेंट्स में ऐसा निमोनिक्स होता है। तो तुम मुझको बोलो, राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज अ टीडियस टास्क और सिंपल टास्क? बोलो, रिलेटिवली सिंपलर और टीडियस? बोलो। Simple. हाँ, इट इज नॉट टीडियस, करेक्ट, बट असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन स्पेसिफिक। अब तुम बोलोगे असेंबली लैंग्वेज कैसे मशीन स्पेसिफिक हुआ? तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, द निमोनिक्स वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स। जैसे एक कंप्यूटर में निमोनिक होगा एडीडी एड, तो दूसरे कंप्यूटर में निमोनिक होगा एडी एड, ऐसे। तो ये एक कंप्यूटर पे चलेगा, ये दूसरे पे चलेगा, ऐसे। सो असेंबली लैंग्वेज वाज ऑल्सो मशीन स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसको देख लो, कुछ लिखो मत, टेक 5 seconds, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैटेगरी, हेडिंग मत दो, अभी मत दो हेडिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जितने भी लैंग्वेजेस अभी हम यूज करते हैं ना, दे आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, the statements are similar to English or similar to mathematics. Statements are similar to English or similar to mathematics. जैसे you may have a statement C is equal to A plus B. अभी तुमको पता है स्टेटमेंट क्या करेगा, A एंड B को ऐड करेगा, रिजल्ट C में स्टोर करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा क्या होता है कि इट इज नॉट टीडीएस, यानी लिखने में इतना टीडीएस नहीं है, ओके। एंड बोलो नेक्स्ट फायदा क्या होगा हाई लेवल लैंग्वेज का, बोलो गैस करो। Not machine specific. इट इज नॉट इवन मशीन स्पेसिफिक, ऐसे, ठीक है। सो आई होप ऑल दिस इज अंडरस्टूड। अभी तुमने हेडिंग शायद दिया है बी, तो अंडर बी जो भी तुमको लिखना है लिखो अपने वर्ड्स में, अंडर सी फिर हेडिंग दो सी, फिर उसके नीचे भी जो भी लिखना है अपने वर्ड्स में फटाफट लिखो। चलो, सो आई गिव यू 2 minutes फॉर दिस, क्विकली कॉपी दिस, क्विकली कॉपी दिस। हो गया तो गिव मी अ थम्स अप। एज यूजुअल ऋतु, चिन्मय, अर्णव, मोहक, श्रेयस, किया, रिया, आयुष, अस्मी का भी हो गया। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अभी give the next heading 1.3, 1.3, ये सब हो 1.3 program or software, come on, program or software. So by the way, next week say you can do this, okay, around 1:30, between 1:30 to 1:45 you can plan your lunch or whatever, okay, and that is the time when I'll give you a break, okay, 15 minutes का break होगा, ठीक है। give the heading program or software, ठीक है। अब तुमको देखो प्रोग्राम का मतलब तो ऑलरेडी पता है, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो तुम्हारे सेलफोन में जितने भी एप्स हैं, एप्स, ओके, अब भले वो जूम का ऐप हो, इंस्टाग्राम हो, या जो भी ऐप हो, ठीक है।
all of them are basically programs, all of them are basically softwares. तो प्रोग्राम बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, ऐप बोलो, एक ही चीज है. बट जब हम ये टर्म यूज करते हैं ना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, तो इसे एक स्पेशल सिचुएशन में यूज करते हैं. सो आई वांट यू ऑल टू राइट अ मीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस इट. तो चलो लिखो, मैं को डिक्टेट करूंगा. लिखो, लिखो. अ सॉफ्टवेयर is simply a software is simply a collection of programs. A software is simply a collection of programs which performs one particular task, which performs one particular task. ठीक है. अभी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? ओके, तो जब हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, तो बेसिकली कैसा है, जब छोटा होता है ना प्रोग्राम, जब छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम. बट जब प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर का प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर का प्रिसाइज डेफिनेशन है कि बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 एंड सो ऑन. And these programs together they perform one particular task. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंटेशन करता है. गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजिंग करता है, एंड सो ऑन. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर. ओके, अभी देर आर 3 पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच वी नीड टू स्टडी ओवर ईयर. जिसमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो हमने डेमो लेक्चर के दिन भी किया था. तो उसका नाम है कंपाइलर. ओके, 1 मिनट. हाँ, तो उसका नाम है कंपाइलर. अभी थ्रू आउट द एंटायर सिलेबस मेनी टाइम्स, या तुम्हारे कॉलेज में मेनी टाइम्स यू विल हियर दिस वर्ड्स. कौन सा वर्ड्स? कंपाइलर, कंपाइलेशन, कंपाइलिंग, ऐसा. ठीक है. तो अभी कंपाइलर का क्या मतलब है वो देखते हैं. सो गिव अ हेडिंग कंपाइलर, और उसके नीचे मैं डिक्टेट करूंगा. गिव अ हेडिंग नंबर 1 कंपाइलर, या डोंट गिव द नंबर, जस्ट राइट कंपाइलर, और उसके नीचे मैं उसका डेफिनेशन डिक्टेट करूंगा. ठीक है. अभी मुझे एक बात बोलो. चलो इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं. पहले पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं. कम ऑन एवरीबॉडी, राइट अ डेफिनेशन. लिखो. अ कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम. A compiler is itself a program a compiler is itself a program which translates our program. A compiler is itself a program which translates our program written in high level language written in high level language. स्क्रीन पे देखो. अब ब्रैकेट में लिखो सोर्स कोड. क्लोज द ब्रैकेट्स. क्लोज द ब्रैकेट. टू, फिर लिखो टू टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज. ब्रैकेट में लिखो ऑब्जेक्ट कोड.
ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। अच्छा, नाउ आई वांट यू ऑल टू रीड दिस डेफिनेशन इन योर माइंड। एक बार अपने माइंड में डेफिनेशन रीड करो। एक बार अपने माइंड में डेफिनेशन रीड करो। ओके, सो ध्यान से सुनो। अभी ये देखो, कंपाइलर बेसिकली क्या है। ओके, अगर तुमने डेफिनेशन रीड किया तो तुमको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हम वो प्रोग्राम लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर को ना ये समझ में नहीं आता है। अगर ध्यान है तो बोलो, कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ में आता है? बोलो, कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ में आता है? बताओ। Ones and zeros. हाँ, तो कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है वंस एंड जीरोस। तो अपने लिए जो ये है ना, वो कंप्यूटर के लिए ये है। सो द कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक दिस। क्या? आई कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश, you can speak and understand only French. So in between, we need a translator, and that translator is a compiler. Okay. So next week ना हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप पे कुछ प्रोग्राम भी करेंगे। बट वो प्रोग्राम करने के लिए तुम्हारे लैपटॉप पे कंपाइलर होना चाहिए। तो वो कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करेगा। ओके। So now, if you ask me in one word, the compiler does the work of translation. But before translation, the compiler also does the work of error checking. अब error checking किसको बोलते हैं? तो देखो, हर लैंग्वेज का ना अपना एक सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंग्लिश में कोई लाइन लिखना शुरू करते हैं, तो वो लाइन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या होता है? बोलो, वो लाइन का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? बोलो, क्या होता है? बोलो। कैपिटल होता है ना। इंग्लिश में जब हम कोई लाइन लिखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो वो बेसिकली इंग्लिश का सिंटैक्स है। तो उसी तरह से जब हम सी लैंग्वेज लिखेंगे, जावा लिखेंगे, पाइथन लिखेंगे, तो उसका भी सिंटैक्स होगा, यानी ग्रामर होगा। जैसे यू सी ए सेमीकोलन ओवर हियर, सो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज विल एंड विद अ सेमीकोलन। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेशन करने से पहले वो क्या करेगा, वो पूरा सिंटैक्स चेक करेगा। अगर सिंटैक्स सही है तो ही वो ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब तुमको याद है जब मैंने मशीन लैंग्वेज कराया था, मैं तुमको कुछ बोला था मशीन लैंग्वेज का कुछ एडवांटेज है। बोल सकते हो क्या एडवांटेज है? बोल सकते हो? कैन यू टेल मी? Directly understood by computer. हाँ, सो नाउ कैन यू ऑल्सो टेल मी हाउ दैट इज एन एडवांटेज? उसको मैंने एडवांटेज क्यों बोला? कैन यू टेल मी दैट? We don't need a compiler. वेरी गुड। देखो क्या होता है ना, कंपाइलर ना ये ट्रांसलेशन करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब ये ट्रांसलेशन करने में कुछ तो टाइम जाएगा ना। भले वो टाइम मिली सेकेंड होगा, ओके, 1 मिली सेकेंड होगा, 2 मिली सेकेंड होगा, बट एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स कुछ तो टाइम जाएगा, जीरो तो नहीं हो सकता है। ठीक है। अभी क्या होता है ना, देर आर सम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, जैसे प्रोग्राम्स विच कंट्रोल अ स्पेसक्राफ्ट, प्रोग्राम्स विच कंट्रोल अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So such programs are directly coded in machine language so that they are directly understood by the computer. तो उधर कंपाइलर का फिर जरूरत नहीं पड़ता है। एंड दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इन टूडेज वर्ल्ड। ओके। तो अगर तुमको कुछ ऐसा प्रोग्राम है जहाँ स्पीड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कोड हो जाएगा ऐसे। ठीक है। सो एनी डाउट्स विद कंपाइलर? एनी डाउट्स विद कंपाइलर? ठीक है, अब थोड़ा लिखेंगे। तुमने डेफिनेशन लिखा है ना, उसके नीचे ये डायग्राम कॉपी करो, ये वाला। कॉपी दिस डायग्राम। बाय द वे, जूम में ऐसा कोई फीचर है कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम मेरे को मिल जाए फॉर अटेंडेंस, ऐसा कुछ, वेयर आई विल गेट ऑल द नेम्स इन टेक्स्ट फॉर्मेट, नेम्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स? ऐसा कोई फीचर है जूम में?
Okay, come on, copy this. So can you explain the third point again? Directly understood. So basically what happens is now, normally the programs which we write, okay, we write it in this language. We'll write it in this language, okay. Now, when we write a program, the program will be first given to compiler. The compiler will convert it to ones and zeros. And then that converted program, which is in ones and zeros, will be understood by the computer. Now, this entire process of translation will take some time. It could be 5 milliseconds, 8 milliseconds, whatever, but it will take some time. Now, there are some programs where speed is critically important, like programs which are used in spacecrafts, in nuclear reactors, and so on. So such programs are then not written in high-level language. They are written in machine language. Why? Because if they are written in machine language, then compilation is not required. Why compilation is not required? Because those programs are directly understood by the computer. Okay, so then we end up saving those 5 to 10 milliseconds, which are critically important over there. Okay, any more doubts? All right. Okay, so I assume you wrote this. Sorry, ये diagram हो गया शायद. अब उसके नीचे लिखो before translation. Before translation, the compiler performs. The compiler performs activity of error checking. Error checking. Error checking. ठीक. Now, give the next heading linker. And if you have colored pens, you use colors like this. Otherwise, you can do underlining. Linker. 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 ठीक है. सबसे पहले see in the WhatsApp message also I had told you to carry 4 pens, to always sit with 4 pens of 4 different colors. So here onwards, I will use lots of colors on the screen, and whenever I'm using colors over here, you should also use your colors. Why? Because if you use colors in your notebook, trust me, after 4-5 months, what will happen is when you are referring your notebook, understanding your notebook will become very simple, very easy. Why? Because of the intelligent use of colors. So when I say intelligent use, what I mean, let's say I write statement number 1 and 3 in blue color, okay? And let's say I write statement number 2 and 4 in red color, okay? So you tell me what could be one meaning of doing this? What does this mean when I'm doing this? Any idea? It's okay if you give me wrong answers. कोई टेस्ट क्वेश्चन थोड़ी ना है. बोलो इसका एक मतलब क्या हो सकता है? बोलो. Tell me, come on. If I'm doing something First, like this. हाँ बोलो बोलो. first and third would be interconnected to each other, and second and fourth will be interconnected to each other, or Absolutely. kinda important. Correct. एकदम सही. So basically, first and third are related to each other in some way, and that is the same case with second and fourth. ठीक है? अब होगा क्या कि अगर तुम कलर्स यूज करते हो, ओके, तो फिर ये सब चीज ना ऑटोमेटिकली जैसे तुम बुक देखोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा. ओके, सो दैट इज वाई सिट विथ कलर्स. wherever I use the color, you should also do the same. Okay, now coming back to linker, I hope you give this heading linker. Okay, अभी हाँ, अभी तुमको क्या लगता है लिंकर क्या करता होगा? बेसिकली लिंकर भी एक प्रोग्राम ही है. लिंकर इज ऑल्सो प्रोग्राम. क्या करता होगा तुम्हारे हिसाब से? गेस करो. वट एवर, टेल मी वट एवर यू फील लाइक टेलिंग. लिंकर क्या करता होगा तुम्हारे हिसाब से? बोलो. Now, even if you're paying attention to the colors, one thing is obvious, linker कुछ ना कुछ लिंक करता होगा, कुछ ना कुछ लिंक करता होगा.
अब वो क्या लिंक करता है, तो वो समझने के लिए डायग्राम को देखो। ये किसका डायग्राम है? ये किसका डायग्राम है? बोलो। अभी बस किया था 15 मिनट पहले, किसका डायग्राम है? सॉफ्टवेयर। हाँ, ये जो डायग्राम है सॉफ्टवेयर का डायग्राम है। सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, तो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नाउ many a times we'll use this word running the software या executing the software या running the program या executing the program या running the app, executing the app। तो ये जो वर्ड है ना, रन, रन या एग्जीक्यूट, इसका मतलब है ना तुमको अच्छे से समझना है। सिंपली बट अच्छे से समझना है। चलो मुझे एक बात बोलो, राइट नाउ तुम सबके फोन में व्हाट्सएप है क्या? व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है क्या? कम ऑन फटाफट, यस या नो? Yes. Yes. यस, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। हाँ, right now on your phone, is the WhatsApp running? Right now on your phone, is the WhatsApp running? हाँ बोलो, बोलो, yes या no? हाँ बोलो ऋतु, बोलो। Yes. Any other answer? No. It shouldn't. Your answer should be no actually. See, what I'm trying to say is, देखो मेरे पास फोन है, ठीक है, मेरे पास फोन है, ओके, होम स्क्रीन पे, ओके, होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप है, होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप है। अब जब मैं व्हाट्सएप के आइकन को क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप विल स्टार्ट रनिंग, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। सो रनिंग द सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? रनिंग द सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मेकिंग द सॉफ्टवेयर डू इट्स वर्क। एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है मेकिंग द सॉफ्टवेयर डू इट्स वर्क। तो जब तुम किस सॉफ्टवेयर से उसका काम करा रहे हो, तब मतलब तुम उसको रन कर रहे हो। तो तुम्हारे सेल फोन में अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है बट शायद रन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये रनिंग का मतलब है। एनीवे, अब क्या होता है ना, ध्यान से सुनो। लिंकर का क्या मतलब है? एकदम सिंपल। पहले काम करेंगे, एक लाइन लिखेंगे। आई होप तुमने हेडिंग दिया है, यू ऑल हैव गिवन दिस हेडिंग। बिलो दिस हेडिंग, कम ऑन, राइट अ स्मॉल डेफिनेशन, राइट अ डेफिनेशन, कम ऑन, राइट। A linker, a linker is a program, is a program which links, which links all the individual programs, which links all the individual programs of the software, of the software into a single program, into a single program, after which the software may execute, after which the software may execute। जब भी तुम कोई चीज लिखोगे ना, लिखते वक्त ध्यान से लिखो तो तुमको अपने आप ही वो समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अ लिंकर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम which links, which connects all the individual programs of the software into one program, after which the software executes। तो देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी तुमको कोई सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का है, हाँ, तो तुम क्या करोगे, आई मीन लिंकर क्या करेगा? लिंकर क्या करेगा? वो सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स है उनको लिंक करेगा। वो लिंक करके नाउ दे विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, और उसके बाद ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो लिंकर का बेसिकली ये काम होता है कि इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को लिंक करना, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है। नाउ गिव द हेडिंग लोडर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्लाइटली डिफिकल्ट, interesting and difficult, give the heading loader, loader। अच्छा, तुमको क्या लगता है लोडर क्या करता रहेगा? कुछ तो बोलो, तुमको क्या लगता है लोडर क्या करता होगा? बोलो, कम ऑन। हाँ,
प्रोग्राम को लोड करना या इंफॉर्मेशन लोड करना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट विल डू सम काइंड ऑफ लोडिंग करता है, प्रोग्राम को लोड करता है, इंफॉर्मेशन को लोड करता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ग्रेट डिटेल कि लोडर क्या करता है। ये नेक्स्ट वीक भी अपने को काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। एंड हियर यू विल राइट सम नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, मैं को डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं को तुमको डायग्राम दिखाऊंगा, बट मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, तुमको अपने वर्ड्स में लिखना है, इसे ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी आई होप यू रिमेंबर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, इधर ये मेमोरी यूनिट है, ठीक है। अभी जो मेमोरी यूनिट है ना, या तो ये रैम हो सकता है या फिर ये हो सकता है हार्ड डिस्क, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर सेलफोन। हाँ, अब समझो तुम्हारे सेलफोन में तुमने कोई सॉन्ग स्टोर किया है। बाय द वे, एवरी सॉन्ग इज स्टोर्ड एज अ फाइल एंड दैट फाइल हैज व्हाट फॉर्मेट। उसको क्या बोलते हैं? एम क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं ना। कौन सा फाइल बोलते हैं सॉन्ग को? बोलो क्या बोलते हैं? MP4। हाँ, वेरी गुड, उसको बोलते हैं MP3 फाइल। MP4 भी होता है सॉन्ग, बट MP4 एक्चुअली वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है, बट सॉन्ग भी हो सकता है। एनीवे, तो लेट्स से तुमने अपने हार्ड डिस्क में एक सॉन्ग स्टोर किया है इन MP3 फॉर्मेट, ओके। अभी समझो तुमको सॉन्ग को सुनना है, तुमको वो सॉन्ग को सुनना है। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे? सॉन्ग पे क्लिक करोगे, ठीक है। नाउ ईयर ऑनवर्ड्स थिंक लाइक इंजीनियर्स, थिंक लाइक प्रोग्रामर्स। अब तुम ये सोचो कि जब तुम सॉन्ग पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बता, वो जो सॉन्ग तुम्हारे हार्ड डिस्क में जो स्टोर्ड है ना, हाउ इज इट स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क? हाउ इज इट स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क, दैट सॉन्ग? एनी गेस? तुमको आंसर मालूम है भाई? That song which is stored on your hard disk, how it is stored on your hard disk? So in your hard disk, it is stored as a sequence of, बोलो क्या? As a sequence of, बोलो क्या? Sequence of, हाँ बोलो मोहम्मद। ones and zero. हाँ, ones and Ones. तुम्हारे हार्ड डिस्क में जो भी स्टोर्ड है वो वंस एंड जीरोस में, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, तुम्हारे फोन के हार्ड डिस्क में एक सॉन्ग है। अब तुमको वो सॉन्ग सुनना है, तो तुमने वो सॉन्ग पे क्लिक किया, ठीक है। अब टेक्निकली क्या होगा? तो वो जो सॉन्ग है जो वंस एंड जीरोस में स्टोर्ड है ना, वो वंस एंड जीरोस ना, व्हाट विल हैपन इज those ones and zeros, they will be transferred from the hard disk to the CPU, from the hard disk to the CPU। चलो गेस करो सीपीयू क्या करेगा? देखो, मैं तुमको गेस करने बोला ना। जब मैं तुमको बोल रहा हूँ गेस करने, दैट मींस यू आर अलाउड टू बी रॉन्ग, यू आर अलाउड टू गिव मी रॉन्ग आंसर्स। हाँ, तो गेस करो सीपीयू क्या करेगा अभी? सीपीयू क्या करेगा बोलो? कुछ तो सोचो, क्या तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है? हाँ बोलो अनिरुद्ध। लोड हाँ, क्या बोलो? लोड करेगा। हाँ, वेरी गुड। सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू बेसिकली क्या करेगा? ये जो वंस एंड जीरोस है ना, उसको वो रिसीव करेगा, एंड द सीपीयू कन्वर्ट्स वंस एंड जीरोस टू एनी गेस क्या लिखने वाला हूँ? एक वर्ड बोल सकते हैं, एनी गेस क्या लिखना है? वंस एंड जीरोस टू क्या? इट विल कन्वर्ट वंस एंड जीरोस टू साउंड। तो सीपीयू क्या करेगा? ये वन जीरो को लेगा, उसको साउंड में कन्वर्ट करेगा। अभी साउंड में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू क्या करेगा? सोचो, चलो गेस करो। साउंड में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू क्या करेगा? गेस करो, बोलो। Output पे transfer. हाँ, वेरी गुड। नाउ दिस साउंड विल बी आउटपुटेड टू द स्पीकर, ऐसे। तो देखो, मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। हार्ड डिस्क से वन एंड जीरो आया सीपीयू, सीपीयू में कन्वर्ट हुआ टू साउंड, एंड साउंड मिला स्पीकर को, एंड इवेंचुअली तुमने गाना सुना, ठीक है। अब आता है द इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान से सुनो। अब आई होप तुमको याद होगा, तुमने ऐसा कोई डायग्राम देखा था, ये मेमोरी यूनिट है, ओके। उसके नीचे सीपीयू है, सीपीयू, ठीक है। फिर हमने उधर ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये जो हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क, हाँ, द हार्ड डिस्क हैज क्या पढ़ा था उधर? याद करो, हार्ड डिस्क हैज क्या? याद आ रहा है क्या? द हार्ड डिस्क हैज हाई एक्सेस टाइम।
इसका मतलब ये जो हार्ड डिस्क है ये फास्टर है या स्लोअर है? बोलो, फास्टर है या स्लोअर है? बोलो क्या? lower. Slower. slower, स्लोअर है ना। तो अभी होता क्या है पता है, ध्यान से सुनो, या होगा क्या, सुनो आप। इफ यू आर ट्रांसफरिंग द सॉन्ग फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू सीपीयू, if you are transferring the song from the hard disk to CPU, then you will hear the song with breaks in it. You will hear the song with breaks in it. ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक का वही मतलब है जो तुम मेरे को बोल रहे थे बिगनिंग में, जब मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं था तो मेरा आवाज ब्रेक्स के साथ आ रहा था, माई वॉइस वॉज ब्रेकिंग। जब सेलफोन पे सिग्नल नहीं होता है तो अपना वॉइस ब्रेक होता है, तो जो ब्रेकिंग इफेक्ट है ना वो तुमको इधर सुनने मिलेगा, ठीक है। अब वो सुनने क्यों मिलेगा? इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये केस में नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। इधर प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो, कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, लुक एट माय पेन, ये ट्रांसफर हो रहा है ना, ये ट्रांसफर बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तो सीपीयू बेचारा क्या करता है, उसको जो मिलता है ना उसको वो साउंड में फटाक से कन्वर्ट कर देता है। बट उसको डेटा मिलेगा तभी वो कन्वर्ट करेगा ना। अगर उसको डेटा स्लोली स्लोली मिलेगा तो क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा, वेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, वेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, वेट करेगा। अब वो जब वो वेट कर रहा है सीपीयू तो तुमको बीच में ब्रेक सुनने मिलेगा क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है साउंड ऐसे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, खत्म नहीं हुआ है, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। अब मुझे तुम एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, ध्यान से सुनो, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। तुम जब सच में गाना सुनते हो अपने सेलफोन पे, तो तुमको बीच में ब्रेक सुनने मिलता है क्या? तुमको बीच में ब्रेक्स आता है क्या? यस या नो? तुम जब, अरे इतना तो बोलो। No. हाँ, No. हाँ, नो, द आंसर इज नो। तुम जब सेलफोन पे सच्ची गाना सुनते हो, ओके, अगर वो गाना तुम्हारे फोन में स्टोर्ड है तो उसमें ब्रेक्स नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन रियलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनना, इन रियलिटी क्या होता है, द सॉन्ग is never directly transferred from hard disk to CPU. ओके, वो जो हार्ड डिस्क एंड सीपीयू है ना, उनके बीच में आता है रैम, रैम, ठीक है। होता क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना, जब तुम सॉन्ग पे क्लिक करते हो ना, जब तुम सॉन्ग पे क्लिक करोगे, द एंटायर सॉन्ग, आई रिपीट, द एंटायर सॉन्ग इज फर्स्ट कॉपीड ऑन द रैम। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरा का पूरा सॉन्ग ना रैम पे कॉपी हो जाता है, यानी रैम नाउ हैज अ डुप्लीकेट ऑफ दिस सॉन्ग। तो इधर तो सॉन्ग है ही, इधर भी है। और उसके बाद while the song is being played, while the song is being played, it is played from the RAM। अब रैम का स्पीड काफी अच्छा होता है, तो इधर क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेकिंग इफेक्ट नहीं आता। ओके, आई थिंक तुमको इतना समझा। अब मुझे बात बोलो, यहाँ लोडर कहाँ फिट होता है? हम ये सब लोडर को पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना। डोंट फॉरगेट, तुमने हेडिंग दिया लोडर, तो लोडर इधर किधर फिट होता है बोलो तुम्हारे हिसाब से? लोडर पिक्चर में कहाँ से आया बोलो? स्पीकर हाँ, और सीपीयू के बीच में। किसके किसके बीच में? स्पीकर और सीपीयू के बीच में। हाँ, वेरी गुड, बट आंसर इज समथिंग एल्स, बट गुड यू ट्राइड, वेरी गुड अनिरुद्ध। हाँ, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर, बोलो। सो लोडर will load the song from hard disk to CPU। लोडर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से ले, सीपीयू नहीं, सॉरी, रैम। लोडर क्या करेगा, इट विल लोड द सॉन्ग फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। अच्छा, अब ये जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया है खाली सॉन्ग का नहीं है, ये सब चीज में ऐसा होता है, नेक्स्ट वीक भी ये काम आएगा। सब चीज में नहीं किया तो सुनो, समझो तुमने व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप का एग्जांपल लो। राइट नाउ व्हाट्सएप है ना तुम्हारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर के बाद समझो लेक्चर खत्म हो गया, अब तुमने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया। जैसे तुम व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करोगे, लोडर क्या करेगा, इट विल लोड द व्हाट्सएप प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। और उसके बाद जब तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, वाइल यू आर यूजिंग इट, उसको वो रैम से यूज होगा, वो हार्ड डिस्क से यूज नहीं होगा।
देखो हमारे सेलफोन में ये तुमको पता रहेगा ना, जो भी प्रोग्राम देखो होता है, हाँ, उसको अगर तुमको, अगर समझो ऐसे मैंने ये होम स्क्रीन को दबाया, ऐसे मैंने हो सॉरी होम बटन को दबाया, तो मेमोरी से नहीं निकलता है। याद है हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी से निकालने के लिए तुमको नीचे का 3 लाइन प्रेस करना पड़ता है। जब तुम नीचे का 3 लाइन प्रेस करोगे, ओके, और फिर उसको ऐसा ऐसा करोगे ऊपर, तभी जाके वो मेमोरी से निकलता है, तभी जाके वो मेमोरी से निकलता है। तो जब तुम वो ऐसा ऐसा करते हो ना, यू आर एक्चुअली, पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको रैम से निकाल रहे हो। उसका रैम में कॉपी रहता ही है, जब तक तुम उसको ऐसा करके निकालोगे नहीं ना, तब तक तो वो रैम में कॉपी रहता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो हमारा सी प्रोग्राम भी ऐसे ही काम करेगा। जब तुम सी प्रोग्रामिंग करोगे वो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होगा, बट रनिंग के पहले, ओके, जस्ट बिफोर यू रन द प्रोग्राम, लोडर क्या करेगा, उसको हार्ड डिस्क से रैम में लोड करेगा, और फिर रैम का कॉपी यूज होगा। सो एनी डाउट्स ओवर हियर, एनी डाउट्स? ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो। हाँ बोल, कुछ डाउट है किसी को, किसी को डाउट है? No, sir. ओके, एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो। द लोडर, द लोडर loads the program from hard disk to RAM, after which the program executes, after which the program executes. हाँ, अब तुम क्या करो, ये देखो, अगर तुमको चाहिए ना, ये देखो, ये इतना डायग्राम है ना, ये देखो मैं ग्रीन कलर में जो एनसर्कल कर रहा हूँ ना, इतना डायग्राम तुम चाहे तो कॉपी करो, हाँ, और अपने वर्ड्स में कुछ नोट लिखना है तो लिखो। चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस, आई गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। I'm giving you 2 minutes for this. हो गया तो गिव मी अ थम्स अप, हो गया तो गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, Aniruddha finished. Who else? Rutu, Shriram, Thea. So Thea, am I pronouncing your name properly? Thea? Or is Yes, it? sir. Oh, Asmi. Okay. I think most of you have finished. Okay. Now, as far as teaching is concerned, we'll stop here today. Okay. And next week we'll continue from here. So next week, but don't leave the meeting. Wait, don't leave the meeting. So next week when you are again coming, okay, you should revise at least this much. Okay. Uh, Now, wait. Let me take your attendance just a minute. Okay. Don't leave the meeting just a minute. We need to talk about the notes also. So don't leave the meeting.